a warm welcome with a huge round of applause. Good afternoon to one and all present here. I extend my May I request all of you to please be seated? Thank you. I extend my warm welcome to the eminent personality whom we have amongst us, an exemplary human, Zinda Shaheed Maninderjeet Singh Bitta, the chairman of the All India Anti-Terrorist Front and the former president of Indian Youth Congress. Let us have a huge round of applause to welcome our guest, Mr. M.S. Bitta, a Zinda Shaheed. I would also like to welcome our Director of Operations, Mrs. Sejal Thakkar, Administrator, Mr. Kishan Langalia, Middle Section Coordinator, Mr. Sandeep Tiwari, Higher Section Coordinator, Sohil Sir, Assistant Coordinators, Nirata Ma'am, Assistant Coordinator for Middle Section, Vandana Ma'am, Activity In Charge, Mr. Amrutpal Singh, teachers, and all my dear students. As we work to create light for others, we naturally light our way. Let's all seek blessings of the Almighty by kindling the lamp with shlokas followed by the prayer. And for the same, I would like to call choir on stage, and may I request our honorable guest, Mr. M.S. Bitta, our coordinators, assistant coordinators, Director of Operations, Mrs. Sejal Thakkar, Administrator, Mr. Kishan Sir, to please come forward for lamp lighting. शूज काढायचं
All of you please be seated. The patriotic song makes us remember our famous leaders and their contributions to our society. So now, choir will sing patriotic song.
patriotism amongst us. Yes, a feeling of patriotism. I would welcome sir on stage. प्रोग्राम में रुको ना बाद में बोल करता है। Very good students. We have with us Mr. Rathin Bhatt. He serves as a National General Secretary of one of the India's largest youth-run organization, Chhatra Sansad. He has been awarded the CVM's Gaurav Puraskar in 2020. He has been featured by UNICEF for his creation, World Stands Together, a video message of students from 19 countries spreading positivity. He has hosted a talk show named as Yuva Neeti, which was aimed at bringing positivity and direction to the students during the difficult times of Corona. He conducted more than 50 shows with about 50 guests, naming a few: Shri Anna Hazare, Shri Suresh Prabhu, Karan Wahi, and many more. He also organized Gujarat's largest youth conclave, 5th Chhatra Sansad Conclave. The event was witnessed by 10,000 students with guests like Anna Hazare, Shri Rajat Sharma, and 10 such prolific speakers in 2019. Mr. Rathin is also a member of Chhatra Sansad. I will brief you all for the same. For the past 8 years, Chhatra Sansad has been interacting with thousands of young minds, spreading socio-political and economical awareness. It envisages that motivated, committed, and politically inclined youth leaders will emerge to provide positive and effective leadership for our country and involve themselves in local and international politics for the betterment of the country and the world. It aims to raise the extent of sensitivity, awareness, involvement, responsiveness, assess, and the say of youth in the political and democratic process so that a healthy democratic system is evolved. So now, Mr. Rathin will enlighten us more with his thoughts on School se Sansad Tak. So I would hand over this mic to Mr. Rathin. Hello everyone. Hello. इतनी आवाज में बिट्टा जी यहाँ भी नहीं आएंगे. थोड़ा आवाज करो. भारत माता की. I can't hear you. भारत माता की. भारत माता की. वंदे. 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 बस इतनी आवाज आनी चाहिए बिट्टा जी जब तक यहाँ पे है, क्योंकि सर को जोश सर में हमसे 100 गुना ज्यादा है ना. तो हमारी तो इतनी फर्ज बनती है कि हम लोग जोश के साथ सर को आज स्वागत करें. बहुत अच्छा लग रहा है, आप सभी लोग देश का झंडा लेके आज बैठे हैं और बिट्टा जी जैसे महान व्यक्ति आज हमारे साथ आए हैं. कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है. खाना नहीं खाया क्या? खाना खाया? बहुत बढ़िया. So before we welcome Bitta ji on stage, I would just like to say a couple of lines and probably set the tone for what you are in store for. देखो मेरी ओर, देखो मेरी ओर, पढ़ो मेरे मस्तक पे सत्यमेव जयते का शिलालेख और पहचानो मुझे, मैं भारत हूँ. मुझे वेदों की ऋचाओं ने जन्मा है. मेरे परिचय के लिए इतना ही पर्याप्त है कि अमृत स्वरूपी गंगा मेरी माँ है. मैं वही भारत हूँ, मैं वही भारत हूँ जहाँ अनेकता में एकता देखकर दुनिया वाले चौंक जाते हैं.
मेरे बेटे बेटियां 9 धर्मों और 3000 जातियों में बटे हैं, फिर भी एक तिरंगे को सर झुकाते हैं और एक साथ जन गण मन गाते हैं। मैं वही भारत हूं जो 75 साल पहले सिर्फ रुई बनाया करता था और आज रॉकेट बनाता है। जो मुझे मदारियों का मुल्क समझ के हंसते थे, आज वही न्यूक्लियर सबमरीन देख के थर्राते हैं। मैं विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता हूं और सबसे युवा देश। आवाज देता हूं मेरे युवाओं को, आओ और अपने हाथों से अपनी किस्मत लिखो। आजादी के अमृत महोत्सव में नए इतिहास की इमारत लिखो। उपलब्धियों के मानचित्र पर खून और पसीनों से भारत लिखो। दुनिया वालों, जितना जोर है लगाओ। दुनिया वालों, जितना जोर है लगाओ। हम हिंदुस्तानियों को रोक के दिखाओ। हम 75 साल पहले नहीं रुके। हम 75 साल पहले नहीं रुके, जब मिट्टी में रेंग रहे थे, घुटनों पे घिसट रहे थे। अब क्या रुकेंगे? अब तो हमने सैकड़ों आसमान कंधों पर उठा लिए हैं। फिर भी मुकाबला करना चाहते हो तो करो, मैदान में आओ, हमें रोक के दिखाओ। तुम्हें लगता था हम गए गुजरे हैं, बेचारे हैं। आज दुनिया के सबसे कामयाब देशों में लोगों की लिस्ट निकालो, 10 में से 7 हमारे हैं। जब हमारी रफ्तार देखो, जब हमारे पड़ोसी चौक से स्पेस का डायग्राम बनाना सीख रहे थे, हम चांद की मिट्टी चूम कर वापस आ गए थे। जब दुनिया मार्स पे करोड़ों फूक रही थी, हम मुट्ठी भर पैसों में मार्स घूम आए थे। हम झोपड़ों के चिराग, किसानों की संतानें, मेहनत कशों की औलाद। देख लेना, हौसलों का हस्तिनापुर हम ही बनाएंगे। आखिरी पंक्ति बोलूंगा, थोड़ा जोश दिखाइएगा क्योंकि इसके बाद बिट्टा जी बोलने वाले हैं। हमारा एक कोहिनूर अगर अंग्रेज लूट ले गए तो क्या हुआ? अभी यहाँ 140 करोड़ कोहिनूर बाकी है। धरती तोड़ के निकलेंगे, आसमान तक चमचमाएंगे। भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, Mr. Rathing. Thank you so much. Terrorism is one of the leading and most devastating global problems that existed before terrorism became an international issue. It starts with a series of irrational thoughts and beliefs that cause profound emotions such as anger, hatred, revenge, and so on. This results in terrorist acts such as attacks or bombings. The damage done by terrorism activities is so significant that the people in charge of protecting our country has to become more thoughtful when dealing with terrorism. We are lucky to have one such exceptional personality with us, M.S. Bitta. Driven with a mission to eradicate terrorism from society and make this country a safe nation by empowering our women and youth, Zinda Shaheed M.S. Bitta defies death to achieve his goal in the midst of an extremely hazardous task to wipe out terrorism from human lives. Though an award in itself would not induce an individual to perform heroics, but it is the recognition that matters, and Mr. Bitta certainly leads the chart of courageous man in the country. I would like our Director Operations, Mrs. Sejal Thakkar, and Administrator Kishan Sir to felicitate Zinda Shaheed M.S. Bitta with a huge round of applause, students, and zor se bolo, Vande! Yes, a huge round of applause. Applause should go on. दुश्मन को गोली के निशाने पे लिए बैठा हूँ, मेरी जिंदगी को मैं मौत के मुहाने पे लिए बैठा हूँ। दफन कर दूंगा हर कोशिश,
मैं दुश्मन ए हिंद की, मेरी देश की दुआओं का मैं तूफान लिए बैठा हूँ। May I request Zinda Shahid MS Bitta to inspire and encourage our students with his words of wisdom, followed by interactive sessions. वंदे मातरम। सबसे पहले तो मैं उन आतंकवादी ताकतें जो देश को तोड़ना चाहती हैं, वो खालिस्तान की बात करता है, वो देश के खिलाफ साजिश करता है। जिस तरीके से अभी मैम ने उन्हीं लफ्ज़ों से शुरुआत की, मैं ये जवाब देना चाहूँगा उनको। एक शाम चिरागों में सजा रखी है, शर्त लोगों ने हवाओं में लगा रखी है, अंजाम की भी हम परवाह नहीं करते, जान हमने भी हथेली पे उठा रखी है। प्रिंसिपल मैडम, मेरे बच्चों और मेरे साथियों, तो बड़ा आज बच्चों के बीच में आकर के एक बड़ी खुशी मिल रही है कि आप बच्चे आने वाले वक्त के अंदर जब आप पढ़ लिख करके किसी मुकाम पे पहुंचने की कोशिश करेंगे, इस अच्छे एजुकेशन सेंटर के अंदर, गोयनका पब्लिक स्कूल के अंदर, इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल के अंदर से, जिस तरीके से अभी बच्चों को मैंने राष्ट्र के लिए गीत गाते हुए देखा तो मेरी आंखों में पानी भी आ गया। क्या दिल से उनका एक राष्ट्र के प्रति जज्बा देखा बच्चों के अंदर। कितनी आप प्रिंसिपल, हमारे टीचर बच्चों को राष्ट्र के लिए अभी से प्रेरणा देते होंगे। जिस एजुकेशन सेंटर के अंदर बचपन के अंदर से राष्ट्र भक्ति की भावना सिखाई जाती है, देश सेवा की भावना सिखाई जाती है, अपने इतिहास के वो खूनी पन्नों को, किस तरीके से हमारे भारत को आज़ादी मिली, कहाँ जलियांवाला बाग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों ने कितनी बड़ी कुर्बानियां शहादत दी। शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, मंगल पांडे, इत्तफाकुल्ला खां, सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय, चंद्रशेखर आजाद, किसी ने संघर्ष किया, किसी ने लाठियां खाई, किसी ने सीने पे गोलियां खाई। शहीद आजम भगत सिंह जैसे योद्धों ने, राजगुरु सुखदेव जैसे योद्धों ने फांसी के रस्से को हाथ रख के डूबा। कितनी कुर्बानियों, शहादतों के बाद ये भारतवर्ष आजाद हुआ। हमें आज ये महसूस करना है, क्या उस आजादी के बाद हम उनकी तरह आजादी की रक्षा कर पाए? क्या हम आगे इस आजादी की रक्षा कर पाएंगे? क्योंकि वो जो वक्त था आजादी का, वो चाहते, भगत सिंह जी चाहते, राजगुरु सुखदेव चाहते, सुभाष चंद्र बोस जी चाहते, तो वो हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर बन सकते, हिंदुस्तान के राष्ट्रपति बन सकते। पर उनका एक ही मकसद था, हम रहें या ना रहें, और हमारी आने वाली जनरेशन, उसको हम मातृभूमि की जो गुलाम धरती अंग्रेजों ने जंजीरों में जकड़ी हुई है, उसको निकाल करके जाएंगे। को फांसी के फंदे को चूमेगा, को सीने पे गोलियां खाएगा, को लाठी खा करके शहादत का जाम पिएगा, पर हम आने वाली जनरेशन के लिए इस भारत को आजाद करके देंगे। उनका मकसद कुर्बानी देने का ये नहीं था कि अगर भारत आजाद हो जाए हम किसी पद पोस्ट को ले। उनका एक ही मकसद था, सिर्फ आने वाली जनरेशन के लिए भारत आजाद कराना। क्या अपने अंदर वो जज्बा है कि उनकी मिली हुई आजादी की हम रक्षा करें? क्या हमारे अंदर वो जज्बा है? क्या हम रोज आज ऐसी शिक्षा लेते हैं कि जब भी हम बड़े होंगे हमारी सोच अब्दुल कलाम की तरह होगी,
हमारी सोच कल्पना चावला की तरह होगी, जो एक करनाल की स्टूडेंट बेटी ने दुनिया के अंदर एक नाम बनाया, अमेरिका के अंदर पूरी दुनिया के नाम बनाया। क्या हमारी ये सोच होगी कि हम उन शहीदों की सोच पे चलते हुए इस आज़ादी की रक्षा करेंगे? ये हमें अपने अंदर एक फैसला करना है। माँ बाप, उन्होंने हमें जन्म दिया है, उन्होंने बड़ी मेहनत से आपको शिक्षा दी है और आगे भी शिक्षा लेनी है। और माँ बाप से भी बड़ा जो मैं मानता हूं वो है भारत माँ। वो भारत माँ जो पूरी दुनिया के अंदर एक ही देश है जिसका नाम है भारत माता, वो हिंदुस्तान। जो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई जो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर को अपने आंचल में समा के रखती है। एक भारत माँ अपने पेट से जन्म देती शहीद आजम भगत सिंह, महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज, गुरु गोविंद सिंह महाराज, ऐसे योधों को जन्म देती एक भारत माँ जिसने सबको अपनी आंचल में समा के रखा है। उसकी रक्षा के लिए, उसका नाम ऊंचा करने के लिए, पूरे विश्व में भारत माता का नाम ऊंचा हो, उसके लिए हमें क्या करना है? एक फौज के ऑफिसर बनना है, एक साइंटिस्ट बनना है, एक अच्छे व्यापारी बनना है, एक अच्छे लीडर बनना है। लीडर बनना है तो नरेंद्र मोदी की तरह बनना है, जो पाकिस्तान, चाइना, पूरी दुनिया के अंदर आतंकवादियों के चक्के छुड़ा दे। क्या ऐसा बनना है? हमें ये भी सोचना है। गर्व की बात है कि आप हिंदुस्तान में तो जन्म लिया, और जा जा गर्वी गुजरात, उस धरती पे जन्म लिया जो संस्कारों की धरती है। यहाँ सिर्फ संस्कार हैं। माँ बाप बच्चों को आगे संस्कार सिखलाए जाते हैं, और जिस देश के अंदर संस्कृति, संस्कार, उसको हम असूलों पे लेके चलते हैं, उनके नक्शे कदम पे चलते हैं, और वो देश, वो स्टेट, वो कभी भी कमजोर नहीं पड़ती। अगर हिंदुस्तान में अगर संस्कार कहीं माने जाते हैं, वो हिंदुस्तान की धरती सबसे पहला नंबर आता है गुजरात। जय जय गरवी गुजरात, जहां पहले कहा जाता था हिंदुस्तान का सबसे बड़ा दिल वो है दिल्ली, राजधानी, पर नहीं। आज हिंदुस्तान का सबसे बड़ा अगर नाम लिया जाता है, हिंदुस्तान के साथ हिंदुस्तान का दिल, हिंदुस्तान की आन, हिंदुस्तान की शान, वो है जय जय गरवी गुजरात, जिन्होंने पूरी दुनिया के अंदर अपना नाम पूछा। आपको फक्र होगा बच्चों कि सरदार पटेल गुजरात की धरती है, जो महान योद्धा थे, जिन्होंने भारत को आजाद कराने के लिए, जिसने राजे महाराजे राजवाड़ों से इस भारत को आजाद कराने के लिए उनका अहम रोल अदा रहा, सरदार पटेल जी का। और सरदार पटेल जी के कुछ अधूरे सपने थे। वो थे कश्मीर, जहां कभी 370 धारा थी, जहां रोज गोलियां चलती थी, जहां रोज बम चलते थे। उनके सपनों को अगर पूरा किया, वो गुजरात की धरती के दो लोगों ने पूरा किया। एक का नाम नरेंद्र मोदी, एक का नाम अमित शाह। एक गुजरात की धरती का नाम इतना ऊंचा पूरी दुनिया में हुआ कि दो योद्धे हमको दिए। सरदार पटेल जी के सपनों को पूरा किया। शहीद आजम भगत सिंह भी आपकी तरह एक स्टूडेंट थे, बड़ी छोटी उम्र थी उनकी, और वो जलियांवाला बाग के अंदर जब जनरल डायर की गोलियां चली, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाइयों की कुर्बानियां हुई, एक छोटी सी बोतल के अंदर सबका खून इकट्ठा करके रोज अपनी माँ के सामने लगाते माथे पे, कहते माँ मैं जब बड़ा हूँगा तो इस भारत को आज़ाद कराऊंगा, अंग्रेजों को इस देश से भगाऊंगा। और वही होता है, वो स्टूडेंट लीडर जब बड़ा होता है तो पार्लियामेंट पे बम फेंकता है, राजगुरु सुखदेव के साथ। बड़ी छोटी उम्र होती है, और इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाता है। फिर जब 14 नंबर कोठरी लाहौर जेल में बंद कर दिया जाता है, फिर उनको उनके दोस्त मिलने आते हैं, और भगत सिंह जी को कहते, भगत सिंह तुम्हारी शादी कब होगी? तो भगत सिंह हंसते हंसते कहते हैं, अगर इस भारत माता की गुलाम धरती के अंदर मेरी शादी होती है तो मेरी दुल्हन मेरी मौत होगी,
और जो शहीद हो चुके मेरे दोस्त वो मेरे बराती होंगे। ये स्टूडेंट लीडर के अंदर जज्बा था जिन्होंने आज़ादी लेके दी। और उनकी उम्र जब फांसी की थी, वो फांसी की उम्र उनकी उम्र थी 23 साल। 23 साल की उम्र में भगत सिंह ने फांसी के रस्ते को चूमा और कहा, मेरा रंग ते बसंती चोला, वंदे मातरम, भारत माता की जय करते हुए हंसते हंसते फांसी के रस्ते को चूमा। वो भगत सिंह एक आपका लीडर, स्टूडेंट लीडर था भगत सिंह। आज भी अगर उनके इतिहास को हम देखते हैं, हमें उनके इतिहास में कई ऐसी चीजें मिलती हैं। इतिहास, उम्र छोटी थी पर इतिहास उनका लंबा होता जा रहा है। तो बच्चों, आज से आपको एक मन के अंदर एक प्रेरणा, एक जज्बा इस देश की खातिर ऐसा करना है कि हमारे अंदर से एक जज्बा निकले कि हम बड़े होकर फौज में जाएंगे, एक अच्छे एक अब्दुल कलाम की तरह साइंटिस्ट बनेंगे, या एक और अच्छे राष्ट्रभक्त बनेंगे, ताकि हम देश की आज़ादी की रक्षा कर सकें, हम अपने राष्ट्र को मजबूत कर सकें। आपने देखा होगा आज यूक्रेन और रशिया की जंग के अंदर किस तरीके से तिरंगे झंडे का नाम ऊंचा हुआ। हमारे दुश्मन देश पाकिस्तान के बच्चों ने, स्टूडेंट ने भी, जो पढ़ते थे वहां पे, जो शिक्षा लेने गए थे, तिरंगा झंडा ऊपर किया, वो बच गए। आज हमारे देश की इतनी बड़ी शक्ति और शान इस गुजरात की धरती ने हमें दी है, वो है नरेंद्र मोदी और अमित शाह, जिन्होंने दुनिया में जाकर के आने वाले आपके फ्यूचर के लिए अच्छा भारत बनाया। नरेंद्र मोदी जी का एक ही सपना है, तेरा वैभव अमर रहे, मां हम दिन चार रहे ना रहे, हम रहे या ना रहे, और हमारी आने वाली जो जनरेशन है उसके लिए मैं ऐसा एक भारत बनाऊं, ऐसा शक्तिशाली भारत बनाऊं कि आने वाली नस्लें भी उनको याद करें, हजारों साल तक इस भारत माता का नाम मजबूत और ऊंचा रहे। हमें उनसे बहुत कुछ सीखना है, हमें उनसे कई चीजें प्रेरित करती हैं, उनसे सीखने के लिए उनके हर काम को देखना है, हर चीज को उनको देखना कि वो राष्ट्र के लिए बेटा, मुझे जो प्रेरणा मिली थी, मेरा ख्याल मेरी उम्र 7 साल की होगी। एक तरफ हरमंदिर साहिब, एक तरफ जलियांवाला बाग, जहां जनरल डायर ने गोलियां चलाई थी 13 अप्रैल बैसाखी के दिन, जहां हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों का खून बहा गोलियों से, जो देश को आज़ाद कराना चाहते थे। तो मैं अपने ग्रैंडफादर के साथ वहाँ सैर करने जाया करता था, बुजुर्ग थे, मुझे ले जाते थे। तो वहाँ दीवारों पे गोलियों के निशान थे, बम्बों के निशान थे। तो कई महीने, साल जाता रहा। तो एक दिन मैंने कहा ग्रैंडफादर को, दादाजी ये क्या है? उन्होंने कहा ये जनरल डायर की गोलियों के निशान हैं, जो भारत की आज़ादी मांग रहे थे, उनके ऊपर गोलियां चलाई थी, खून ही खून बहा था। उसके बाद फिर उन्होंने मुझे भगत सिंह जी की किताब लेके दी, सुभाष चंद्र बोस जी की किताब लेके दी, जलियांवाला बाग के इतिहास की 2-3 महीने पढ़ा। उसके बाद फिर उसी लाल खून की मिट्टी पे शपथ ली कि आज़ादी इन शहीदों ने लेके दी, वक्त मिला तो मैं भी अपना जीवन राष्ट्र के लिए दूंगा। वो मेरी प्रेरणा। Thank you, sir. Anybody else who wants to ask the question? Yes, Jia. जब आप इतनी सारी लड़ाइयों में थे तो आपने अपने आप को कैसे बचाया? देखो बेटा, मैं अपनी जिंदगी को बोनस समझता हूँ। मैं मर चुका हूँ, मैं जिंदा है ही नहीं। मेरे साथ 70 लोग शहीद हो गए। मेरे शरीर में लोहा है सारा, उसके सहारे चलता हूँ। अपने सामने लाशें उड़ती हुई देखी, छोटे छोटे बच्चे जो स्कूल में जा रहे थे उनको भी उड़ते हुए तारों में लटकते हुए देखा। तो मैं भगवान को कई बार कहता कि मैं भी उनके साथ चले जाता, पर भगवान ने कहा नहीं, अभी आपको रहना है। मैं सवाल भगवान से पूछता हूँ। तो मौत मेरी दोस्त है, मैं मर चुका पर मेरी दोस्त है। तो सुबह उठ के भगवान से जब प्रार्थना करता हूँ, भगवान को कहता हूँ कि जब भी मौत देना है राष्ट्र के लिए,
बम्बो गोलियों से देना और आखिरी मेरा ये वक्त जरूर मेरे मुंह से निकालना, मेरा धर्म भारत माँ, मेरी जात वंदे मातरम, कौन हिंदू मुसलमान। Thank you so much, sir, for your inspiring and motivational speech. है कोई और? Anybody else? आजा 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 आजा, आने दो बच्चे। Good afternoon, sir. Sir, I just wanted to know, I want to work for the country. So, like Roy is there. So, how do I apply for the colleges and which colleges and how do I qualify for it and to work undercover for the country? देखो बेटा, अगर अभी से मन बनाओगे कि मैंने डिफेंस में जाना है, साइंटिस्ट बनना है, तो अभी से आप अपने अंदर वो जज्बा ले आओगे। अभी से मन बनाना होगा, कल नहीं आज। अब्दुल कलाम कौन थे? वो साधारण परिवार से थे, हिंदुस्तान के राष्ट्रपति उनको खुद बनाया उन्होंने, और जब गए एक बैग लेके वापस चले गए। आज आपके वो लीडर वो नहीं है हमारे पास, पर आज भी वो हमारे सामने वो जिंदा है। तो हमें एक आज से अपने मन के अंदर एक बनाना है कि हम राष्ट्र के लिए किस तरीके से सेवा कर सकते हैं। सर, जब जब आपका हौसला टूटा, क्या चीज़ ने आपको मोटिवेट किया आगे चलने के लिए? देखो बेटा, मैंने जो बताई पहले बात, जलियांवाला बाग, और बाकी जो कुछ भी है वो भगवान के हाथ में है, ठीक है ना। मैं जो कुछ हूँ, आज चलता हूँ, मेरे शरीर में इतनी दर्दें हैं, चलने के टाइम पे, उठने के टाइम पे मैं कभी महसूस नहीं करता कि मैं हैंडीकैप्ड हूँ, मुझे सहारा लेना पड़ता है, मैं तकलीफ में हूँ। जहाँ मेरी भारत माँ सामने आ जाती है, मुझे दर्दे में फूलों की तरह लगती है। तो हमें हमेशा अपने पुराने इतिहासों को याद करना है, भगत सिंह जी को याद करना है, सुभाष चंद्र बोस जी को याद करना है। पूरी दुनिया में कैसे, उस वक्त तो प्लेन भी नहीं थे, कैसे गए होंगे, कितना बड़ा संघर्ष किया। लक्ष्मीबाई जी को याद करना है, पुराने इतिहास को, पन्नों को खोलना है। वो वक्त जहाँ सड़कें नहीं थी, कुछ भी नहीं था, आज तो हमारे पास सब कुछ है। हम किस तरीके से देश की रक्षा के लिए, उनकी आज़ादी की रक्षा के लिए हम योगदान दे सकते हैं, हमें वो किताबों को पढ़ना है। आगे तो बढ़ना है, पर उन पुराने इतिहासों को पढ़ना है। कवि प्रदीप जी कहते थे ना, हम लाए हैं तूफान से ये किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। उन पुराने गानों को याद करना। शुक्रिया सर। हम सब लोग एक शपथ लेंगे, बेटा जी शपथ दिलवाएंगे हम सबको। अब बात ऐसे कर लो, आज हम शपथ लेते हैं कि भारत माता की आजादी की रक्षा के लिए, भारत माता को मजबूत करने के लिए, आतंकवाद को समाप्त करने के लिए हमेशा अपने जीवन को देने के लिए तैयार रहेंगे। वंदे वंदे भारत माता की जय। शुक्रिया सर, सच में आपकी बातें सुनकर देशभक्ति का जज्बा जाग उठा है, और इसी के लिए एक बार फिर से भारत माता